Assalamualaikum students. I hope you all would be fine and doing great. So students, today we are going to start our next lecture of grade 1 English. So I would like you to open your English workbooks. Okay students, open page number 44 of your English workbook. Next topic, today's topic is preposition. आज हमारा topic start होने जा रहा है preposition. So preposition, what is preposition? Prepositions क्या होते हैं? Preposition students वो word होते हैं या group of words होते हैं जो combine होते हैं noun के साथ और pronoun के साथ, और वो कोई भी phrases बनाते हैं, और वो phrases adverbs, adjective और like noun की तरह होती हैं. जैसे with हो गया, in हो गया, on हो गया, behind, in front of, under. Okay students, so ये सारी preposition words होते हैं. So today we have to do the exercise. Choose suitable preposition for each picture and make sentences. यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, उनको आपने देखना है, और यहाँ पे आपको कुछ preposition words दिए हुए हैं. आपने उन preposition words को यूज करते हुए sentences बनाने हैं पिक्चर के अकॉर्डिंग. So let's start. So look at the first picture. As you can see, there is a rabbit and he is inside the hat. He is inside the hat. He is in the hat. So इसका हम sentence क्या बनाएंगे? इसका हम sentence बनाएंगे The rabbit is in the hat. The rabbit is in the hat. यहाँ पे हम in preposition word use करेंगे. The next picture is there is a rabbit and he is sitting in front of the tree. वो tree के आगे बैठा हुआ है. ठीक है? So इसके लिए हम कौन सा preposition word use करेंगे? In front of. Okay, so the rabbit is in front of tree. The rabbit is in front of tree. The next picture is, as you can see, there are two trees and the rabbit is between the trees. So we will make a sentence. The rabbit is between the trees. Okay, then next picture is there is a rabbit again and he is hiding behind the tree. He is hiding behind the tree. वो दरख्त के पीछे है. वो दरख्त के पीछे है. So we will make a sentence. The rabbit is now behind the tree. Okay. Come to the next picture. Now यहाँ पे आप देखिए पिक्चर में रैबिट दरख्त के पास बैठा हुआ है. तो हम क्या कहेंगे? दरख्त के बिल्कुल साथ बैठा हुआ है तो हम कहेंगे sitting next to the tree. The rabbit is sitting next to the tree. So you will make the sentence. The rabbit is sitting next to tree. Okay. Come to the next picture. There is again a rabbit and he is now under the table. And he is now under the table. So make a sentence. The rabbit is under the table. The rabbit is under the table. Okay. So come to the last picture of this page. Now a rabbit seems very happy and now he is sitting on the table. He is sitting now on the table. So you will make a sentence. Now the rabbit is on the table. The rabbit is on the table. Okay students, come to page number 45. On page number 5, it is your home task. You can look at the picture. What you have to do, you have to look at the picture and fill in the blanks with the preposition. Okay, how would you know which prepositions you are going to use? You have to look at the right side of the page and here you will find a box and helping words. So you can take help from these words: on, in, behind, next to and under. Okay, so you have to fill it by yourself. The boy is dash the house. Boy कहाँ है house में? आपने उसको ढूंढना है और ढूंढने के बाद आपने लिखना है. ओके. The cat is dash the house. cat की पोजीशन कहाँ पे है? आपने उसको ढूंढ के यहाँ से वर्ड लेना है और उसको कंप्लीट करना है. The rabbit is dash the house. rabbit कहाँ पे है? The dog is dash the window. dog विंडो के किस साइड पे है? The horses are dash the house. और horses house के कहाँ पे हैं? Now students, come to page number 64 of your workbook and the topic is my try. So it is a topic regarding to guided writing. It is a topic regarding to guided writing. इससे पहले भी हमने guided writing के topics किए हैं और ये भी हमारा guided writing का एक topic है my try. So you have to write about your try. Okay students, let me tell you about my try. I will tell you about my try. It is a dash. इसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है, और आप उसके हाथ लेते हुए अपने टॉय के बारे में लिखेंगे. मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपको अपने टॉय के बारे में बताऊंगी. इट इज़ अ डैश. वो क्या है? इट लुक्स लाइक डैश. वो किस तरह से दिखता है? वेयर व्हेन डिड आई गेट इट. मैंने कब और कहाँ पे उसको लिया? हु गेव इट टू मी. या मुझे किसी ने वो दिया.
व्हाट डज इट लुक लाइक, वो किस तरह का दिखता है, व्हाट डिड आई डू विद इट, मैं उसके साथ क्या करती हूँ, एंड आई एम ग्लैड टू हैव माई डैश, मतलब मैं खुश हूँ कि मेरे पास मेरा टॉय है, और वो कौन सा टॉय है. ओके स्टूडेंट्स, सो यू विल बी प्रोवाइडेड द नोट्स ऑफ दिस टॉपिक and I will tell you about my toy, and you would have to take help from my toy guided writing, and you can make your own guided writing. Okay, so you have to complete it by yourself by taking help from my notes. Okay students, एंड पेज नंबर 65 इज़ योर होमवर्क. ये आपको खुद करना है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ आप कैसे लिखेंगे. इसके तो टॉय के तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, बट माय फेवरेट वेजिटेबल, यू हैव टू राइट अबाउट माय फेवरेट वेजिटेबल बाय योरसेल्फ. आई लाइक डैश, लेट मी टेल यू व्हाई. आई लाइक विच वेजिटेबल, जो वेजिटेबल आपको पसंद है आपने उस वेजिटेबल का नाम यहाँ पे लिखना है, और फिर आपने बताना है कि क्यों पसंद है. रीज़न नंबर 1, यहाँ पे आपने रीज़न नंबर 1 लिखना है कि आपको वो वेजिटेबल क्यों पसंद है. आप बता सकते हो उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, उसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, या वो वेजिटेबल के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है. ठीक है, फिर आपने रीज़न 2 लिखना है कि आपकी मम्मा शायद उसको बहुत अच्छे से बनाती हैं, इसलिए आपको वो बहुत पसंद है, या आपको उसको किस चीज़ के साथ खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, या आपको वेजिटेबल्स इसलिए भी पसंद है क्योंकि वो मैक्रोनीज़ में या वो चिकन के साथ आप बना के खा सकते हैं, तो वो इसलिए. मतलब आपने ना अपने रीजंस लिखने हैं कि व्हाई डू यू लाइक दैट वेजिटेबल मोस्ट. ओके, सो हियर यू हैव टू राइट 3 मोस्ट रीज़न कि आपको वो वेजिटेबल क्यों पसंद है. ओके, देन इसके बाद है आई थिंक दिस वेजिटेबल इज डैश. आपने बताना है कि ये वेजिटेबल क्या है. ठीक है, माई फेवरेट वेजिटेबल लुक्स लाइक, और यहाँ पे आपने अपने फेवरेट वेजिटेबल की पिक्चर बनानी है. आई होप यू गेट इट. Now come to page number 73. Our comprehension number 3 is going to start. That is the day I tried to cook. So students, आप लोगों में से किस किस को कुकिंग करना बहुत पसंद है. तो यहाँ पे एक स्टोरी है एक ऐसे स्टूडेंट की, ऐसे बच्चे की जिसने फर्स्ट टाइम जिस दिन कुक करने की कोशिश की थी, कोई चीज़ बनाने की कोशिश की थी. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. अभी हम इसको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे. ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट. द डे आई ट्राइड टू कुक, वो दिन जब मैंने कुछ बनाने की कोशिश की, कुछ खाना बनाने की कोशिश की. सो लेट्स स्टार्ट. माई मदर इज़ अ ग्रेट कुक. मेरी मामा एक बहुत अच्छी कुक हैं. आई हेल्प माई मदर इन कुकिंग. मैं अपनी मामा की मदद करता हूँ या करती हूँ कुकिंग करने में, खाना पकाने में. आई लाइक टू मेक चिकन. मुझे सबसे ज़्यादा चिकन बनाना बहुत पसंद है. बेक्ड चिकन इज़ माई मोस्ट फेवरेट थिंग टू मेक. बेक्ड चिकन बनाना मेरा सबसे फेवरेट काम है जब भी मैं कोई भी चीज़ बनाऊँ या खाना बनाऊँ. इट इज़ ऑल्सो माई फेवरेट फूड टू ईट. ये मेरा सबसे फेवरेट फूड भी है जब मैं खाने के लिए. ठीक है. वन डे, एक दिन, व्हेन माई मदर वॉज सिक, जब मेरी मामा सिक हो गई, बीमार हो गई, आई ट्राई टू मेक द चिकन ऑल बाय माई सेल्फ. मैंने खुद कोशिश की चिकन बनाने की. आई वॉश्ड द चिकन. मैंने चिकन को धोया. एड सम सॉल्ट एंड पेपर. उसमें मैंने नमक और मिर्ची डाली. एंड पुट इट इन अ पैन. उसको मैंने पैन में रखा. इन द ओवन टू बेक. फिर मैंने उसको ओवन के अंदर रख दिया बेक होने के लिए. ओके, देन है when the bell rang to tell me chicken was done. और जैसे ही ओवन की जो बेल है वो बजी, उसने रिंग किया मुझे बताने के लिए कि चिकन जो है वो कंप्लीट हो गया, वो डन है, अब कुक हो चुका है. आई ओपन द ओवन डोर. मैंने ओवन का डोर ओपन किया. गेस व्हाट, सोचे क्या हुआ होगा. द चिकन वॉज नॉट कुक्ड. चिकन तो बना ही नहीं, वो तो कच्चा रह गया. कैसे? I started to laugh. मैं हंसना शुरू हो गई. Did you know what did I do? क्या आपको पता है मैंने क्या किया? I forgot to turn on the oven. मैं तो ओवन ऑन करना ही भूल गई. The oven ऑन करना भूल गई. Amazing. My mother was happy that I tried to cook by myself. मेरी मामा खुश थी कि मैंने खुद कोशिश की कुक करने की, खाना बनाने की. Then my mother ordered pizza. फिर मेरी मामा ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया. We enjoyed pizza a lot. हमने पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा इंजॉय किया. And kept the chicken for another day. फिर हमने चिकन को रख दिया कि हम उसको किसी और दिन बना लेंगे. Okay? So I hope you all liked the story. So read the passage and circle the correct answer. We are going to read the passage and circle the correct answer. The boy likes to cook what? जो बॉय था उसको क्या कुक करना पसंद था? बेक चिकन, सैंडविच या चिकन?
द बॉय एड्स इन द चिकन, बॉय ने चिकन में क्या ऐड किया था? शुगर, बटर, सॉल्ट एंड पेपर। बॉय ने सॉल्ट एंड पेपर ऐड किया था और बॉय को बेक्ड चिकन पसंद था। ओके, हिज मदर वॉज सिक, आउट ऑफ द होम, स्लीपिंग। हिज मदर वॉज एक्चुअली सिक। His mother ordered what? His mother ordered burger, pizza या chips. His mother ordered pizza. Okay. The plural of chick is chickens, chicken, chickens. The plural is chicken. Okay. Now come to page number 74. Okay. Here are few questions. You will be provided the notes of all these questions. और फिर आपने इनको complete करना है. Like, was the boy successful in making baked chicken? Why did the boy's mother order a pizza? Do you like cooking? What type of things can you make? What are the necessary things you should have before using an oven? Find nouns in this passage and use in your sentences. Okay students, ये आपको notes provide कर दिए जाएंगे. अब आप आ जाएं पेज नंबर 75 पे. Okay, what do we have on page number 75? We have few pictures. As you can see all of these pictures, these all are the pictures of food, fruits, junk foods, drinks and etc. Okay, so what you have to do, you have to draw a box around the unhealthy food. आपने find out करना है कि unhealthy food कौन कौन से हैं इसमें और आपने box draw करना है. जैसे यहाँ पे मैंने पिज्जा स्लाइस के around एक box draw कर दिया because according to me this is an unhealthy food. Pizza is not a healthy food, so that's why I have drawn the box around it. So आपने भी जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे unhealthy लगती हैं आपने उनके गेट बॉक्स ड्रॉ करना है. सर्कल द फूड्स यू लाइक और जो चीज़ें आपको इन सब में से पसंद हैं आपने उनको सर्कल कर देना है. जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल किया है किसको? आइसक्रीम को, बिकॉज आई लाइक द आइसक्रीम मोस्ट. देन मेक अ ट्राइंगल अराउंड अ हेल्दी फूड. आपने ट्राइंगल बनाना है हेल्दी फूड के अराउंड. जैसे मैंने एप्पल के अराउंड ट्राइंगल बनाया है बिकॉज आई थिंक इट इज़ अ वेरी हेल्दी फूड्स. ओके, सो what do you have to do in the end? Count all the shapes and find out what do you have in more. फिर आपने सारी शेप्स को काउंट करना है और फिर आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा आपके पास कौन सी शेप कलेक्ट हुई हैं. ओके स्टूडेंट्स, देन यू हैव टू कम ऑन पेज नंबर 76. यहाँ पे आपकी कॉम्प्रीहेंशन नंबर 4 स्टार्ट होने जा रही है. स्टूडेंट्स अब तक हम 3 कॉम्प्रीहेंशन कर चुके हैं और वो सारी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने कैसे करनी है और किस तरह से होती है. ओके, अब आपका एक होम टास्क है. आपने क्या करना है, आपने ये कैट्स के टॉपिक पे आपकी कॉम्प्रीहेंशन है, ये आपने पढ़नी है कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग करनी है. रीडिंग करने के बाद आपने ये पैसेज दिया हुआ है आपको, इसको आपने सॉल्व करना है. इसके बाद आपके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं और आपने ये क्वेश्चन आंसर्स भी इसी पैसेज की मदद से, इसी कॉम्प्रीहेंशन का जो आपको दिया हुआ है पैसेज, इसके अकॉर्डिंग आपने अपने क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है. ओके, सो दिस इज़ योर होम टास्क. आपको ये खुद करना है. पिछली जो आपकी कॉम्प्रीहेंशन है उसके आपको नोट्स मिल जाएंगे लेकिन इस कॉम्प्रीहेंशन के आपको नोट्स नहीं मिलेंगे. ये आपने खुद से करना है. ओके स्टूडेंट्स, आपने रीड करना है कॉम्प्रीहेंशन को अच्छे से. आप अपने पेरेंट्स को कह दीजिएगा वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे, बल्कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. हमारा टॉपिक है कैट्स. Cats are one of the most popular pets in the world. Cats दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा फेमस पेट्स में से एक एनिमल है. मेल कैट इज कॉल्ड अ टॉम. जो मेल कैट होती है उसको हम टॉम कहते हैं और फीमेल कैट को हम मोली कहते हैं. यंग कैट्स आर कॉल्ड किटन्स. जो यंग कैट्स होती हैं, जो आप कह सकते हैं स्मॉल कैट्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम किटन्स कहते हैं. ऑल कैट्स लाइक टू स्लीप. सब कैट्स को सोना बहुत पसंद होता है. दे स्लीप फॉर 13 to 14 आवर्स अ डे. वो दिन में कितने घंटे सोते हैं? एटलीस्ट 13 to 14 आवर्स पर डे. When they don't sleep, they like to hunt and play. और जब वो सोते नहीं है तो उनको क्या करना पसंद होता है? उन्हें शिकार करना पसंद होता है और खेलना पसंद होता है. They lick their coat to keep it clean. और वो अपने कोट को लिक करती हैं, चाटते हैं ताकि वो साफ सुथरा रहे. ओके, अब आपने पैसेज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. इसको आपने अब रीड करने के करेक्ट आंसर जो आपके दिए हुए हैं यहाँ पे चूज़ द बेस्ट आंसर, ये आपने अपने अब खुद से करने हैं और आगे आपके क्वेश्चंस हैं वो भी आपने खुद करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू पेज नंबर 46. आवर टॉपिक इज गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज यूजिंग वॉज एंड वर्ड. हमने वॉज एंड वर्ड का यूज़ करना है. So students, let's start.
बट मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते चलूँ, जब भी हम किसी भी सेंटेंस में वॉज एंड वर यूज़ करते हैं, हम हमेशा उसको पास्ट टेंस, गुजरे हुआ जो वक्त है उस टेंस के अकॉर्डिंग हम उसमें वॉज एंड वर यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस भी सेंटेंस में वॉज और वर यूज़ हुआ होगा, इसका मतलब ये है कि वो पास्ट टेंस है, वो पास्ट टेंस है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। वॉज आप किन वर्ड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं और वर आप किन वर्ड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So let me tell you the use of was first. Was आप I, he, she, it and a person, thing or animal, ठीक है। किसी भी person, thing और animal जो singular हो उसके साथ आप was use कर सकते हैं। I, he, she, it and a person, thing और animal। और were आप किस words के साथ use कर सकते हैं? जब आपके पास हो you, we, they and more than two persons और thing। जब भी कहीं पे आपका यूज़ हो रहा हो यू, वी, दे और या तो एक से ज़्यादा पर्सन यूज़ हो रहे हो या एक से ज़्यादा थिंग्स हो, तो उनके साथ आप वर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज़ वर प्लेइंग। बॉयज़, एज यू नो, बॉयज़, देयर इज़ नॉट अ वन बॉय, देयर आर सो मेनी बॉयज़, सो वी हैव यूज्ड वर, ठीक है। असद वॉज प्लेइंग। असद इज ओनली अ वन पर्सन, तो असद के लिए हमने वॉज यूज़ किया है। सो लेट्स स्टार्ट। Your pencil dash not long. Your pencil, pencil, there is only one pencil. यहाँ पे सिर्फ एक पेंसिल की बात हो रही है, so हम यहाँ पे was लगाएंगे। Your pencil was not long. They were here yesterday. अभी हमने देखा था they के साथ आप क्या लगाते हैं? word लगाते हैं। so हम they के साथ word लगाएंगे। they means बहुत ज़्यादा थे वो लोग। They were here yesterday. We dash not allowed to play near the road. वी के साथ भी आप वर्ड लगाएंगे बिकॉज यहाँ पे वी हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग हैं। हम में बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, 3 लोग आ जाते हैं, 4 लोग भी आ सकते हैं, 5 लोग भी आ सकते हैं। सो जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे, व्हेन देयर विल बी मोर देन 2 persons, सो वी विल यूज़ वर्ड। सो यहाँ पे आप वर्ड यूज़ करेंगे। द गेम वॉज ओवर। द गेम, यहाँ पे एक गेम थी इसलिए वॉज यूज हुआ है। सो वी वर गोइंग होम, अगेन वी यूज हुआ है। वी मीन्स हम कितने भी हो सकते हैं, वी आर मोर देन 1 और 2 पर्सन, सो यहाँ पे हमने वर यूज किया है। बर्ड्स ज़्यादा हैं, सो वर यूज हुआ है। बर्ड्स वर इन द नेस्ट। ही वॉज प्रेजेंट यस्टरडे। ही, यहाँ पे ही 1 पर्सन है, सो हमने वॉज यूज किया है। monkeys were jumping on the trees. monkeys, यहाँ पे अगर monkey यूज होता है तो हम was लगाते, लेकिन यहाँ पे monkeys यूज हुआ है, so we will use were. monkeys were jumping on the trees. they dash happy. they were happy. अभी हमने ऊपर पढ़ा जहाँ पे they यूज होगा वहाँ पे हम were यूज करेंगे। they were happy because the day was sunny. देन यहाँ पे आपके पास है द डे। यहाँ पे अगर डेज होता तो हम वर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे डे है, दैट मीन्स एक दिन है। सो किसी भी सिंगुलर थिंग के लिए हम वॉज यूज़ करते हैं, सो वी विल यूज वॉज हियर। देन वी हैव सना वॉज नॉट एट स्कूल यस्टरडे। सना इज अ 1 person, सो वी हैव यूज्ड वॉज। आमना एंड आई, आमना एंड आई, आमना और मैं, हम 2 लोग हैं, सो वी विल यूज वर हियर। The books यहाँ पे ज़्यादा है, so we will use were. The books were in the bookcase. She was eating her banana. She is a 1 person. She is a 1 person. Sorry. Amna and I, we are 2. Amna and I were in the garden, so we have used were here. The books were in the bookcase. यहाँ पे as you know were used by. There are so many books. There is not only 1 book, so that's why we have used were here. She was eating her banana. She is a 1 person, so we have used was here. Ahmad was a cobbler. Ahmad is a 1 person, so we have used was here. Okay students, so come to page number 47. On page number 47, our task is to write 2 sentences of your own using was and 2 using were. इसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, सो ये आपने नोट्स के अकॉर्डिंग कर लेना है। यहाँ पे आपने was और were को यूज़ करते हुए 2 sentences बनाने हैं। ओके, सो देन वी हैव फाइंड 4 मिस्टेक्स इन द स्टोरी, इन सर्कल द मिस्टेक्स। यहाँ पे आपको एक स्टोरी बताई गई है और इसमें आपने 4 मिस्टेक फाइंड आउट करनी है और उसके बाद आपने उन मिस्टेक्स को नीचे करेक्ट करके लिखना है। सो द स्टोरी सेज Hadi and Abid came in the garden to play. The 2 boys were running on the grass. Lots of bugs was in the grass. The 1 bug were not nice. It wanted to bite Hadi on the nose. They also saw a robin in a nest.
6 sparrows was on the sand. There are so many mistakes. Okay, so इसके भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आपने नोट्स की मदद से ये सॉल्व करना है. ओके.